ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 18 ਜੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਟਫੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ PCS PPSC ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਅਤੇ WhatsApp ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ PIB ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਐਲਡਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਐਲਡਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 15 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੁਆਰਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਐਲਡਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 16 ਜੂਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ। ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 215.68 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, 215.68 ਮਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮਲਾਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 215.68 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਾਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਲੋਂਗਵੇ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਆਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਿਲੋਂਗਵੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਕੁਆਚਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ICICI ਬੈਂਕ। ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੰਸਟਾ ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਸ਼। ਸੈਲਰੀਡ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇੰਸਟਾ ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਸ਼। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੰਸਟਾ ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਸ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਲਰੀਡ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ICICI ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ CEO ਨੇ GC ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਇਸ ਦੇ CEO ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ AI ਬੇਸਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਡਾਇਲੋਗ ਦਾ 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਡਾਇਲੋਗ ਦਾ 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਏਸ਼ੀਆਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 3rd ਇੰਡੀਅਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਦਾ ਇਵੈਂਟ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦ ਥੀਮ ਰਹੇਗੀ ਯੋਗਾ ਐਟ ਹੋਮ ਐਂਡ ਯੋਗਾ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उत्ते ऑब्जर्व किया जाएगा।
ये याद रखना। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की गल करिए अमित शाह लवे है गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने। इन्हों के डिप्टी होम मिनिस्टर जी कृष्णा रेड्डी ने जर्मी बैन एक डिवाइस लॉन्च किया गया जर्मी बैन वायरसिस नूं मारन दे लई जर्मी बैन नाम का एक डिवाइस लॉन्च किया गया जी कृष्णा रेड्डी द्वारा। इन्हें डिप्टी होम मिनिस्टर सिकंदराबाद तेलंगाना तो लोक सभा MP ने जी कृष्णा रेड्डी। नेक्स्ट है फॉर्मर क्रिकेटर मैट प्यूरे की रिसेंटली डैथ हो गई है। ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते सी? ये बिलोंग करते सी न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते सी क्रिकेटर मैट प्यूरे इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई। नेक्स्ट है अ न्यू हाउसिंग एस्टेट कह सकते हैं, एक कॉलोनी कह सकते हैं, बनाई जाएगी कित्थे बनाई जाएगी? मैलबोर्न ऑस्ट्रेलिया दे विच रॉकबैंक सिटी है जिहड़ी बनाई जाएगी। और ये क्यों इंपोर्टेंट बनती है? क्योंकि इसकी जिहड़ी गलियां ने स्ट्रीट्स ने इसका नाम इंडियन क्रिकेटर्स के उत्ते भी रखा जाएगा। कपिल देव सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली इन्हां 3 इंडियन क्रिकेटर्स के नाम के उत्ते रॉक बैंक सबर्ड एक सिटी दे विच जिहड़ी कॉलोनी बनाई जा रही है उन्हां दी स्ट्रीट्स का नाम गलियां का नाम रखा जाएगा। नैक्सट है इंडिया ने की करिया 12 कंट्रीज़ के नाल मिल के एक इनीशिएटिव वेरीफाइड इनीशिएटिव नूं ज्वाइन किया। वेरीफाइड इनीशिएटिव की गल करिए 12 कंट्रीज़ के नाल मिल के इंडिया ने इसनूं ज्वाइन किया। किस द्वारा लॉन्च किया गया? यूनाइटेड नेशनस द्वारा टू फाइट द स्प्रैडिंग ऑफ मिस इनफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19 के कारण जिहड़ी मिस इनफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कोविड-19 की इसनूं रोकण दे लई और इसनूं अच्छे तरीके नाल टैकल करन दे लई वेरीफाइड इनीशिएटिव लॉन्च किया गया। इंडिया ने 12 कंट्रीज़ के नाल मिल के इसनूं ज्वाइन किया। नैक्सट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थनवर चंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने इन्होंने इनोग्रेट किया पहला वर्चुअल कैंप किस दे लई एड्स और असिस्टिव डिवाइसिस नूं प्रोवाइड करवाउण दे लई डिस्ट्रीब्यूशन दे लई फिरोजपुर पंजाब दे विच इसनूं लॉन्च किया गया इनोग्रेट किया गया पहला वर्चुअल कैंप फिरोजपुर पंजाब दे विच किस द्वारा? थनवर चंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने। नेक्स्ट आप नैशनल पार्क्स डिस्कस कर रहे हैं तो अज आप डिस्कस करांगे नैशनल पार्क्स हरियाणा। सब तो पहले हरियाणा के नैशनल पार्क्स ने सुल्तानपुर नैशनल पार्क और कालेसर नैशनल पार्क। सुल्तानपुर और कालेसर ये नैशनल पार्क्स कित्थे ने? हरियाणा दे विच। इस तो इलावा हिमाचल प्रदेश दे विच सब तो पहले ग्रेट हिमालयन नैशनल पार्क, पिन वैली नैशनल पार्क, इंद्र किला नैशनल पार्क, खीरगंगा नैशनल पार्क और सिंबली बाड़ा नैशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्र किला, खीरगंगा और सिंबली बाड़ा। ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्र किला, खीरगंगा और सिंबली बाड़ा ये 5 नैशनल पार्क्स ने हिमाचल प्रदेश के विच। जम्मू कश्मीर की गल करिए सलीम अली नैशनल पार्क। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा दे विच है। इस गल का ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इत्थे। सलीम अली नैशनल पार्क जम्मू कश्मीर दे विच है और सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा दे विच है। दाचीगम नैशनल पार्क जिहड़ा कि कश्मीरी स्टैग दे लई फेमस है। इस तो इलावा किश्तवाड़ नैशनल पार्क, सलीम अली नैशनल पार्क, दाचीगम नैशनल पार्क और किश्तवाड़ नैशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर दे विच। झारखंड की गल करिए इकलौता नैशनल पार्क है झारखंड दे विच बेतला नैशनल पार्क इत्थे है झारखंड दे विच। एक बार रिवाइज कर लें हरियाणा सुल्तानपुर और कालेसर, हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंदर किला, खीरगंगा और सिंबली बाड़ा। जम्मू कश्मीर सलीम अली, दाचीगम, किश्तवाड़, सलीम अली, दाचीगम और किश्तवाड़। और झारखंड की गल करिए सिंगल नैशनल पार्क है बेतला नैशनल पार्क झारखंड दे विच। ठीक है जी, इन्हों बार बार रिवाइज करना है, ईजिली याद हो जाएंगे और फिर ये हमेशा याद रहेंगे।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚ ਡੇ ਇਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਐਜ਼ ਵਰਲਡ ਡੇ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਰਾਊਟ। ਵਰਲਡ ਡੇ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਰਾਊਟ, एक दिन ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। बेसिकली सूखा और कह सकते हैं भी डेजर्ट ना बने लैंड नूं की कह सकते हैं एक अच्छे तरीके नाल लैंड की केयर करने दे लई एक दिन ऑब्जर्व किया गया 17 जून। 17 जून नूं इस दिन नूं ऑब्जर्व किया गया। इस दिन की थीम रही सी फूड फीड एंड फाइबर। फूड फीड एंड फाइबर, the link between consumption and land, the link between consumption and land। इस दिन की थीम रही सी फूड फीड एंड फाइबर, the link between consumption and land। इस तो इलावा बाकी दिनों की अगर आप गल करिए, बाकी दिनों के 12 जून नूं 12 जून नूं किहड़ा डे ऑब्जर्व किया गया? 12 जून नूं ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कदों ऑब्जर्व किया गया? 12 जून नूं। 13 जून नूं डे ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल एल्बिज़म अवेयरनेस डे। इंटरनेशनल एल्बिज़म अवेयरनेस डे, इंटरनेशनल एल्बिज़म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया गया 13 जून नूं, जिसकी थीम रही सी मेड टू शाइन, मेड टू शाइन। 14 जून नूं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व किया गया 14 जून। 15 जून की गल करिए, 2 डेज ऑब्जर्व किए गए। एक तो ऑब्जर्व किया गया विंड डे, वर्ल्ड विंड डे। वर्ल्ड विंड डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 15 जून नूं। और दूसरा दिन ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। हुणे आपां डिस्कस किया सी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया गया 15 जून नूं। ये सारे दिन याद रखने। नैक्सट आपां चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल। नैक्सट क्वेश्चन है, who has launched the Indian Gas Exchange। Indian Gas Exchange शॉर्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ IGX ਕਿਹਾ ਗਿਆ। Indian Gas Exchange इंडिया ਦਾ ਪਹਿਲਾ ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। इंडिया का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया किस दे अंडर? अंडर इंडिया एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंडर एक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उसका नाम रखा गया इंडियन गैस एक्सचेंज। इंडियन गैस एक्सचेंज इसनों किस द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया पेट्रोलियम मिनिस्टर, पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान इस तो इलावा धर्मेंद्र प्रधान लवे स्टील मिनिस्ट्री भी है और यह राज्यसभा MP ने मध्य प्रदेश तो, राज्यसभा MP ने मध्य प्रदेश तो। बाकी मिनिस्ट्रीज़ की गल करिए, पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर ने, रेलवे मिनिस्टर ने कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर भी ने। रेलवे मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री है। राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो, महाराष्ट्र तो राज्यसभा MP ने। प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने। कोल मिनिस्ट्री है और माइन मिनिस्ट्री है नलवे। धरवड़ कर्नाटका तो लोक सभा MP ने, धरवड़ कर्नाटका तो लोक सभा MP ने। गजेंद्र सिंह शेखावत की गल करिए, गजेंद्र सिंह शेखावत इन्हां लवे जल शक्ति मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मिनिस्ट्री है। और जोधपुर राजस्थान तो लोक सभा MP ने गजेंद्र सिंह शेखावत। संतोष कुमार गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। और इन्हां लवे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है संतोष कुमार गंगवार लवे, बरेली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। नैक्सट है शंभू एस कुमारन की गल करिए, यह एंबेसडर अपॉइंट किए गए इंडिया वालों किहड़ी कंट्री दे, इंडिया वालों किहड़ी कंट्री दे विच एंबेसडर अपॉइंट किए गए? शंभू एस कुमारन यह अपॉइंट किए गए फिलीपीनस दे विच। इंडिया वालों फिलीपीनस के ब्रांड एंबेसडर नहीं सॉरी हाई कमिश्नर कह सकते हैं, एंबेसडर कह सकते हैं, इंडियन एंबेसडर टू फिलीपीनस शंभू एस कुमारन। इस तो इलावा कुछ इंपोर्टेंट नाम्स डिस्कस करते हैं। रिसेंटली इन्होंने कंट्रीज़ के ही वो एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं।
सब तो पहले अगर नाइजीर की गल करिए, पीके नायर अपॉइंट किए गए नाइजीर दे विच ब्रांड एंबेसडर। फिनलैंड दे विच ब्रांड एंबेसडर नहीं एंबेसडर, नाइजीर दे एंबेसडर पीके नायर। फिनलैंड दे अपॉइंट किए गए सी, रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी फिनलैंड दे भी रवीश कुमार। रोमानिया दे विच अपॉइंट किए गए सी श्रीवास्तव, समथिंग नाम सी राहुल श्रीवास्तव रोमानिया दे विच अपॉइंट किए गए सी। यूके दे अपॉइंट किए गए सी गायत्री आई कुमार अपॉइंट किए गए सी यूके दे विच। इस तो इलावा अगर कंट्रीज़ और कैपिटल्स की गल करिए तो नाइजीर कैपिटल नायमे और करंसी ईको चलती है। ये उन्होंने 8 अफ्रीकन कंट्रीज़ के विचों एक है जिन्हों की करंसी नूं फ्रैंक तो ईको चेंज कर दी गई सी। फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी, करंसी यूरो चलती है। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम है सना मरीन, ये याद रखना। रोमानिया कैपिटल बुचारेस्ट, करंसी इत्थे लीव चलती है। कैपिटल बुचारेस्ट, करंसी लीव चलती है। यूके का हर एक नूं पता ही होएगा, यूके कैपिटल लंडन है, करंसी इत्थे पाउंड चलती है। यूके कैपिटल लंडन है, करंसी पाउंड चलती है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ दादाबाई नारोजी पायनीर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एक बुक लिखी गई, बेसिकली बायोग्राफी लिखी गई दादाबाई नारोजी की। दादाबाई नारोजी काफ़ी इंपोर्टेंट नेम है। अगर इंडियन पॉलिटी की गल करिए, इंडियन पॉलिटिक्स के काफ़ी इंपोर्टेंट नेम है। इन्हों का निक नेम कमेंट बॉक्स के दसना है। इन्हों का एक निक नेम है, इसनों कमेंट बॉक्स के दसना है किस नाम नाल इन्हों बुलाया जाता सी। बुक लिखी गई नारोजी पायोनीर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। किस द्वारा लिखी गई? दिनयार पटेल द्वारा एक बुक लिखी गई रिसेंटली। बुक का नाम है नारोजी पायोनीर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस तो इलावा बाकी नेम्स अगर आप गल करिए, सत्यार्थ नायक द्वारा जी बुक लिखी गई उसका नाम सी श्री देवी गर्ल वूमेन एंड सुपरस्टार। सत्यार्थ नायक द्वारा लिखी गई। मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। इन्हों द्वारा जी बुक लिखी गई सी उस बुक का नाम सी चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह द्वारा इसनों लिखा गया सी। इकबाल चंद्र मल्होत्रा और मरूफ राजा, इन्हों दोनों द्वारा एक सिंगल बुक लिखी गई सी। इकबाल चंद मल्होत्रा और मरूफ राजा, काफ़ी इंपोर्टेंट बुक सी। कश्मीर द अनटोल्ड स्टोरी, इस बुक नूं किस द्वारा लिखा गया सी? इकबाल चंद मल्होत्रा और मरूफ राजा द्वारा। इंपोर्टेंट बुक है, याद रखनी। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSME। बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की गल करिए, की गल करिए, रिसेंटली इसकी डेफिनेशन भी चेंज की गई। डेफिनेशन पता होनी चाहिए है। दूसरी चीज़, MSME मिनिस्टर कौन ने? MSME मिनिस्टर ने नितिन गडकरी। इस तो इलावा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी ने नितिन गडकरी। और नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। तो की करे, एक बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट ओपन किए हैं किस दे लई? कि MSME दे लई, ताकि जेडे MSME ने यह की कर सकन, इन्हों लोन प्रोवाइड करवाया जा सके, एक गारंटीड इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जा सके इस अकाउंट्स के अंदर। लॉन्च किए गए एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया के फर्स्ट पेमेंट बैंक है। फर्स्ट पेमेंट बैंक की गल करिए, किहड़ा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। इस द्वारा सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किए गए। ठीक है जी। इस तो इलावा एयरटेल पेमेंट बैंक का हैडकुआटर की गल करिए, हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है। हैडकुआटर कित्थे है? न्यू दिल्ली के विच है। इसके MD कौन ने? MD एंड CEO अमृता विश्वास इत्थे दे MD एंड CEO ने। इस तो इलावा अगर आप गल करिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने दोनों के रिलेटेड रिसेंटली एक न्यूज़ डिस्कस की हुई है। अपने आई थिंक मई या अप्रैल के अपने न्यूज़ डिस्कस की। हो सके तो कमेंट बॉक्स के दोनों के रिलेटेड एक न्यूज़ दसनी है। आई थिंक एक दे
अपॉइंट किए गए सी, डायरैक्टर अपॉइंट किए गए सी, और भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर अपॉइंट किए गए सी। ठीक है, और एक दे रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस की थी, कुछ स्कीम लॉन्च की थी इन्होंने द्वारा, वह दसनी है। नेक्स्ट है हू हैज़ वॉन न्यूजीलैंड फर्स्ट वर्चुअल शेफ कंपटीशन द क्वालिटी NZ कुलिनरी कप हेल्ड इन इंडिया। न्यूजीलैंड का पहला वर्चुअल शेफ कंपटीशन लॉन्च किया गया, क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप। NZ की फुल फॉर्म इतने न्यूजीलैंड है, क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप, जिसनों हैल्ड किया गया इंडिया के हैल्ड किया गया। बेसिकली अगर गल करिए 120+ एंट्रीज आई सी इस जिस जित्या किसने है अपना करैक्ट आंसर होएगा फोर्थ आंसर बोथ 1 एंड 2। बेसिकली की गल करते हैं कि अंगद सिंह राणा और वैभव भार्गव दोनों द्वारा इस अवार्ड को जितया गया। अंगद सिंह राणा की गल करिए, इन्होंने सी फूड कैटेगरी के जितया है। अंगद सिंह राणा शेफ अंगद सिंह राणा ने सी फूड कैटेगरी के जितया है, और वैभव भार्गव ने मटन की कैटेगरी के जितया है। चिकन मटन कह दें आप, तो चिकन मटन की कैटेगरी के वैभव भार्गव ने इस अवार्ड को जितया है, और सी फूड की कैटेगरी के अंगद सिंह राणा ने इस अवार्ड को जितया। इस तो इलावा अगर आप गल करिए अनमोल नारंग बारे एक इंपोर्टेंट न्यूज़ सी, उसमें आप इत्थे ही डिस्कस कर लेना इस क्वेश्चन के। अनमोल नारंग ये फर्स्ट सिख बने ने जिन्होंने ग्रैजुएशन की है कितों US मिलिट्री अकैडमी USA दी मिलिट्री अकैडमी के ग्रैजुएशन करने वाले फर्स्ट सिख वूमैन, बेसिकली वूमैन ने पर फर्स्ट सिख पर्सन बने ने अनमोल नारंग। नाम याद रखना इंपोर्टेंट रहेगा अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मुख्य मेदलई अभय गाजीव, थोड़ा ट्रिकी नेम है, मुख्य मेदलई अभी गाजीव इन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है। बेसिकली इन्होंने उत्ते करप्शन के चार्जिस से इन्होंने अपनी पोस्ट तो रेजिग्नेशन दिता है। तो यह किहड़ी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से? प्राइम मिनिस्टर से किर्गिज़स्तान के प्राइम मिनिस्टर द्वारा रिजाइन किया गया अपनी पोस्ट तो, किर्गिज़स्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखने ने। इस तो इलावा बाकी कंट्रीज़ की अगर आप गल करिए इन्हों की कैपिटल्स और करंसी डिस्कस कर लें। किर्गिज़स्तान कैपिटल है बिश्केक, करंसी इत्थे सोम चलती है। किर्गिज़स्तान कैपिटल बिश्केक, करंसी सोम चलती है। कजाकिस्तान कैपिटल अस्ताना, करंसी टेंगे चलती है। इन्होंने कन्फ्यूजन नहीं होनी। कजाकिस्तान और कजाकिस्तान अस्ताना, करंसी टेंगे, किर्गिज़स्तान बिश्केक, करंसी सोम चलती है। तजाकिस्तान कैपिटल दुशानबे, करंसी इत्थे सोमोनी चलती है। तजाकिस्तान कैपिटल दुशानबे, करंसी सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबोट, और करंसी इत्थे मानत चलती है। लिथुनिया कैपिटल विलनियस है और करंसी इत्थे लितास चलती है। लिथुनिया कैपिटल विलनियस और करंसी लितास चलती है। ठीक है जी, पंजों कंट्रीज़ की कैपिटल्स और करंसी याद रखनी है, काफ़ी इंपोर्टेंट बनेगी। किसी ना किसी एग्जाम के जरूर पूछी जाती होंगी है कि एक ना एक कैपिटल और करंसी जरूर पूछी जाती है। तो आप हौली हौली डिफरेंट कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके, उस तो बाद उन्होंने रिवीजन भी शुरू करांगे। काफ़ी अच्छे तरीके के नाल आप इन्हां नूं रिवाइज़ करांगे ताकि ये अपने हमेशा की तरह याद रहे। नेक्स्ट है ई ऑफिस एप्लीकेशन, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ई ऑफिस एप्लीकेशन बेसिकली एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की गई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम द्वारा, CBIC द्वारा ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की गई। CBIC के चेयरमैन कौन ने? अपना क्वेश्चन है कि CBIC के चेयरमैन कौन ने? CBIC के चेयरमैन ने M अजीत कुमार CBIC के चेयरमैन ने। अच्छा, इस तो इलावा CBIC के रिलेटेड एक होट न्यूज़
अगर आप तुहानूं याद होया आप कुछ दिन पहले ही डिस्कस की सी दो सिटीज़ दे विच, दो सिटीज़, एक आई थिंक बेंगलुरु सी और दूसरी चेन्नई सी, जिस दे विच लॉन्च किया गया सी तुरंत कस्टम, एक कैंपेन लॉन्च किया गया सी, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया सी तुरंत कस्टम इनिशिएटिव CBIC द्वारा बेंगलुरु और चेन्नई दे विच लॉन्च किया गया सी। ये भी याद रखना है, CBIC द्वारा ही इसनूं लॉन्च किया गया सी। M अजीत कुमार CBIC के चेयरमैन ने रिसेंटली ई-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है CBIC ने। नैक्सट है इस तो इलावा PC मोदी CBDT के चेयरमैन ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स, इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरमैन M अजीत कुमार और डायरैक्ट टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स के चेयरमैन ने PC मोदी। G सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने G सतीश रेड्डी। K सिवान इसरो के चेयरमैन ने K सिवान। सुखबीर सिंह संधू की गल करिए NHAI नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने सुखबीर सिंह संधू। रिसेंटली नैशनल हाईवे अथॉरिटी ने अनाउंस किया कि वह पूरी तरीके के नाल डिजिटल होएगी, फुली डिजिटल हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरी चीज़ इस दे उत्ते पेनल्टी लगाई गई सी 7 लाख रुपए की, किस द्वारा? सेबी द्वारा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके हैड ने अजय त्यागी इसके हैड ने, इन्हों द्वारा 7 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई सी NHAI ते, नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उत्ते। ये याद रखना है। ठीक है जी। नैक्सट है What is the rank of India in number of nuclear weapons according to Swedish think tank? स्वीडन का एक थिंक टैंक है सिप्री की कैपिटल, सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सिप्री जिहड़ा कि एक स्वीडन का थिंक टैंक है, इन्हों द्वारा एक इंडैक्स रिलीज़ किया गया। इन्होंने कहा कि डिफरेंट कंट्रीज़ के किन्ने न्यूक्लीयर वैपन्स ने और वह किन्नी तादाद के इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इंडिया इन्होंने किनवें नंबर पर है? 6th नंबर पर है। यानी कि न्यूक्लीयर वैपन्स के नंबर की कैटेगरी के अगर आप लगाइए कि नंबर ऑफ न्यूक्लीयर वैपन्स इंडिया के जिन्ने ने उसके हिसाब नाल इंडिया किनवें नंबर पर है? 6th नंबर पर है। किनवें नंबर पर है जी? 6th नंबर पर है। बेसिकली सब तो ज़्यादा न्यूक्लीयर वैपन्स की अगर आप इस लिस्ट के अनुसार गल करिए USA के ने सब तो ज़्यादा न्यूक्लीयर वैपन्स कितने ने? USA के। सैकेंड प्लेस पर रशिया बंद है, सैकेंड प्लेस पर रशिया है जिसके लवे सब तो ज़्यादा न्यूक्लीयर वैपन्स ने। थर्ड प्लेस पर UK यूनाइटेड किंगडम और इंडिया किनवें नंबर पर आता है? 6th नंबर पर। इंडिया इस इंडैक्स के 6वें नंबर पर है। यानी कि 5 ऐसी कंट्रीज़ होर ने जिन्हां दे विच न्यूक्लीयर वैपन्स इंडिया नालों ज़्यादा ने। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट UNCTAD। सब तो पहले इसकी फुल फॉर्म भी इंपोर्टेंट बनती है, काफ़ी अगर पूछी जा सकती है किसी न किसी एग्जाम के काफ़ी इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने एक रिपोर्ट जारी की कि FDI की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बनती है फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट कि 2019 दे विच इंडिया किन्नवा मतलब इस रिपोर्ट हुण जारी की गई है कि 2019 तक इंडिया किन्नवा लार्जेस्ट रेसिपिडेंट बनया सी FDI का। यानी कि इंडिया नूं किन्नी फॉरन तो इन्वेस्टमेंट मिली सी, फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट दे विच किन्नवा लार्जेस्ट रेसिपिडेंट सीगा इंडिया? 9th लार्जेस्ट रेसिपिडेंट सीगा। यानी कि 9th नंबर पर सीगा इंडिया, किस दे विच इंडिया नूं फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट दी गई सी। डिफरेंट कंट्रीज़ द्वारा या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा अगर कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है इंडिया दे विच तां ओह फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट के अंडर काउंट होंदी है। तो इंडिया नूं 9वें नंबर पर रेसिपिडेंट सीगा इंडिया फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट का 2019 दे विच। बेसिकली 20% तक इंक्रीज़ हुई सी फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट 2019 दे विच।
नेक्स्ट है इंडिया हैज़ ज्वाइंड GPAI, काफ़ी इंपोर्टेंट, एक ग्रुप ने ज्वाइन किया इंडिया ने GPAI एज ए फाउंडिंग मैंबर टू सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के यूज़ के लिए और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट ਨੂੰ सपोर्ट करने के लिए, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट ਨੂੰ सपोर्ट करने के लिए एक ग्रुप ਨੂੰ ज्वाइन किया इंडिया ने GPAI। इसकी फुल फॉर्म की बनती है, इस दी फुल फॉर्म की बनती है, इसकी फुल फॉर्म बनती है थर्ड ऑप्शन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस इसकी फुल फॉर्म बनती है। बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ कह सकते हैं, ये कह सकते हैं आप जिन्नी भी लार्जेस्ट इकनॉमीज़ ने, लार्जेस्ट इकनॉमीज़ फॉर एग्जांपल USA हो गया, UK हो गया, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कैनेडा, जर्मनी, इटली, जापान, इन्हां सारी कंट्रीज़ द्वारा इसनूं ज्वाइन किया गया, इस ग्रुप नूं ज्वाइन किया गया। USA, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कैनेडा, जर्मनी, इटली, जिन्नी भी जी लार्जेस्ट इकनॉमीज़ ने, साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इन्हां सारी कंट्रीज़ द्वारा इसनूं ज्वाइन किया गया, इस ग्रुप नूं ज्वाइन किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन ने की करिया डेवलप किया एक बायोडिग्रेडेबल कॉटन मास्क, बायोडिग्रेडेबल कॉटन मास्क डेवलप किया पवित्र पति यूजिंग अ हर्बल एक्सट्रैक्ट। बेसिकली डिफरेंट हर्बल चीज़ां अगर आप लगाइए, नीम ऑयल हो गया, टर्मरिक हो गया, तुलसी, सैंडलवुड, सैफरन, इन्हां चीज़ां यानी कि केसर, तुलसी, डिफरेंट चीज़ों यूज़ करके, नीम हो गया, हल्दी होगी, इन्हां चीज़ों यूज़ करके की किया गया एक मास्क बनाया गया, एक बायोडिग्रेडेबल कॉटन मास्क बनाया गया जिसका नाम रखा गया पवित्र पति। किस द्वारा इसनूं बनाया गया, इसनूं किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया, इसनूं बनाया गया सेकंड ऑप्शन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा इसनूं डेवलप किया गया। ठीक है जी। याद रखना डाइट शॉर्ट फॉर्म के उसनूं डाइट कहा जाता है, DIAT। डाइट हैडकुआटर कित्थे है, पुणे महाराष्ट्र के। इस तो इलावा डाइट के रिलेटेड आप एक न्यूज़ होर डिस्कस की सी, कुछ दिन पहले आप डिस्कस की सी, इसने कुछ होर भी बनाया सी, इसने बनाया सी अनन्या एक स्प्रे बनाया सी, डाइट द्वारा ही अनन्या नाम का स्प्रे भी डेवलप किया गया सी। अनन्या स्प्रे किस द्वारा डेवलप किया गया सी, डाइट पुणे द्वारा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पुणे। इस तो इलावा अगर आप गल करिए नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV इसका हैडकुआटर भी पुणे महाराष्ट्र के विच है। और इसने की डेवलप किया सी, इसने बेसिकली डेवलप किया सीगा एलिसा एक टैसटिंग किट कोविड-19 के लिए, टैसटिंग किट नूं कोविड-19 के लिए एक टैसटिंग किट डेवलप की गई सी नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा इस टैसटिंग किट नूं डेवलप किया गया। ये याद रखना है। VST मोबाइल सोल्यूशंस, VST मोबाइल सोल्यूशंस इसका हैडकुआटर कित्थे है, कोचीन दे विच, कोचीन केरला दे विच। VST मोबाइल सोल्यूशंस का हैडकुआटर कोचीन केरला दे विच है। इसने डेवलप किया सी बिन 19 एक मास्क डिस्पोजल मशीन डेवलप की सी। बिन 19 नाम की मास्क डिस्पोजल मशीन VST मोबाइल सोल्यूशंस कोचीन केरला द्वारा डेवलप की गई। DRDO की गल करिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कर्नाटका के बेंगलुरु के विच इसका हैडकुआटर है, कर्नाटका के बेंगलुरु के विच हैडकुआटर है। रीसेंटली वैसे तो इसने कोविड-19 के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ां डेवलप की ने। रिसेंटली अगर सब तो रिसेंट गल करिए तो सुमेरू पैक्स आप डिस्कस किया सी कि सुमेरू पैक्स डेवलप किए सी बेसिकली स्वैटनिंग तो बचाने के लिए। डॉक्टर्स नूं अगर 4 या 5 घंटे के लिए ਜਿਹੜੇ PPE ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਉਹ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਟਨਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਹ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਮੇਰੂ ਪੈਕਸ ਡੈਵਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ DRDO ਦੁਆਰਾ।
ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, PCS ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।